Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है colonialism and the city और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that, we will continue with our discussion. Okay? So you remember in our last class, we were talking about the making of New Delhi as the capital city of British India. तो आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी पता चला कि पहले जब ब्रिटिश आए थे, so New Delhi was not the capital city of British India, right? It was Calcutta that was the capital city. और जो भी उस टाइम मुगल एम्परर्स रह रहे थे हम in India, so these Mughal emperors they were living in Delhi in the royal palace or the Red Fort at that time, right? तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहले तो अलाउ किया था ब्रिटिश ने आफ्टर सेटिंग अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन दैट द मुगल एम्परर्स वर अलाउड टू लिव इन रेड फोर्ट, बट आफ्टर दैट वी सॉ दैट between the period that is 1830 to 1857 it was mainly referred as the Delhi Renaissance, as in that period was seen as the time for the revival of art and culture. हमने देखा था उस टाइम पे दिल्ली कॉलेज भी बना था, राइट? देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज and also the mainly people they learned the Urdu language there. Apart from that the different streams were taught there, like that of literature या फिर arts, humanities. तो ऐसे बहुत सारे different subjects तो थे बच्चों जो उस टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा before the time of 1857 and also how the British they were living in different colonial cities, like for the example of Madras, Bombay and Calcutta. We saw that they were living separately from the Indians और जिस एरिया में वो लोग रह रहे थे these were known as the white cities और जहाँ पे Indians रह रहे थे that place was known as the black cities, right? You saw the distinction between the black and white there. But हम लोग ने दिल्ली के बारे में देखा that the British they started living with wealthy Indians there, right? उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि दिल्ली में आप डिस्टिंक्शन देख रहे थे कि ब्रिटिश कहीं और पे रह रहे थे, इंडियंस कहीं और पे रह रहे थे. Also the British were getting used to the Persian culture. We also saw that they were very much amused with the Urdu language. Apart from that उस टाइम पे poetry और dance culture जो हुआ करता था. So these people, the British were also getting accustomed to all the culture of the Mughals at that time, right? तो आज के क्लास में अब हम लोग बच्चों देखते हैं जो हम लोग 1857 के बारे में पढ़ रहे थे, that how scenario changed when we are talking about 1857 when the greatest revolt of all time it broke in India, right? So what happened after 1857? So the British wanted Delhi to forget its Mughal past. तो बच्चों they were very much absent. जैसे हमने देखा कि finally जब ब्रिटिश ने वापस से रिगेन किया था दिल्ली का कंट्रोल, तो उन्होंने they started this the plunder and they started destroying all the areas that were of Mughals, right? जहाँ पे भी मुगल का प्रेजेंस था वो सारा एरिया डिस्ट्रॉय किया जा रहा था. जितने भी पैलेसेस थे इट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, गार्डन्स जो थे बंद किया जा रहा था. So what these British people wanted? So they wanted Delhi to forget its Mughal past, right? क्योंकि उस टाइम पे लीडर कौन था? So it was Bahadur Shah Zafar who was the leader, who took the leadership of the rebels that time. Therefore, the area around the fort was completely cleared of gardens, pavilions and mosques. तो बच्चों जो रेड फोर्ट था उसके आसपास बहुत सारे गार्डन्स थे, उस टाइम पे बहुत सारे पवेलियंस थे, मॉस्क था. तो आप देख सकते हो कि एक टाइम पे जब हम लोग शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं, so this splendid city was built right by शाहजहां. लेकिन अगर हम लोग अब ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहे हैं, आप देखो कैसे टाइम चेंज कर रहा है कि यहाँ पे जो भी उस टाइम पे रेड फोर्ट के पास जो भी एरियाज थे, इतने सुंदर सुंदर एरियाज थे. So all these mosques, all these gardens, they all were being destroyed by the British. Okay? So mosques in particular were either destroyed or put to other uses. तो आपको याद होगा जब मैं आपको 1857 के बारे में पढ़ा रही थी, तो we saw that the British they were very much particular about Muslims, क्योंकि उनको लग रहा था Muslims were one of the reasons why because of what this revolt broke out, right? So for instance, the Zinatul Mosque was converted into a bakery. No worship was allowed in the Jama Masjid for 5 years. Now you can see कैसे scenario change हो रहा था कि हम लोग शाहजहानाबाद में हमने देखा जामा मस्जिद as being the largest mosque और उससे हायर कोई प्लेस नहीं था. लेकिन यहाँ पे देखो कि मुस्लिम्स को मॉस्क में जाना ही अलाउड नहीं था. They were not allowed to pray and also to perform their prayer. Okay? Also the one of the famous mosque उस टाइम आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे मस्जिद बने थे उस टाइम पे. Okay?
तो एक उस टाइम पे बहुत फेमस था जिन्नतुल मस्जिद, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, राइट, दिस इज द famous जिन्नतुल मस्जिद mosque or the mosque here, and this mosque was then broken down and it was converted into a bakery, एक बेकरी शॉप में कन्वर्ट किया गया था उस टाइम पे, राइट। तो आप देख सकते हो कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है आफ्टर 1857 एंड लाइकवाइज हम लोग इन कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे कि द पीरियड बिटवीन 1830 एंड 1857 वाज दैट ऑफ द पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसां, राइट। ऑल्सो in the 1870s, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. तो आप लोगों ने देखा कैसे शाहजहानाबाद जो शाहजहां के टाइम पे बना था, राइट, मुगल्स के टाइम पे बना था, तो पूरा वो वॉल्ड सिटी था, बहुत सारे वॉल्स थे, मतलब कि पूरा एरिया को वॉल से कवर किया गया था। तो जब ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, 1870s में दे स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल दीज वॉल्स टू एस्टैब्लिश द रेलवे लाइन, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप दिल्ली विजिट करोगे you can see the railway line crossing to that area, right? रेड फोर्ट के पीछे का जो एरिया है वहां से आज भी आप देखोगे ओल्ड दिल्ली का वो रेलवे लाइन, it is crossing from there, okay? And also beyond these walls the city was allowed to expand, right? आप देख सकते हो ये पूरा walls, ये सब पूरा बैक साइड जो जितने भी गेट्स थे बच्चों उसको तोड़ा जा रहा था, okay? The Delhi College was turned into a school and shut down in 1877. तो हम लोगों ने दिल्ली कॉलेज के बारे में पढ़ा था, right? Also we saw that this Delhi College was then turned into school और उसके बाद फाइनली उसको 1877 में बंद कर दिया गया था। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो भी मुगल्स ने बनाया था वो सारी चीजें चेंज हो रही थी। नाउ व्हाई? बिकॉज दिस वाज नाउ द प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यू सिटी, अ न्यू कैपिटल सिटी, दैट इज द न्यू दिल्ली। तो आप देखो एक टाइम पे हम लोग मुगल्स के टाइम पे न्यू दिल्ली को, जब हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, दैट टाइम इट वाज द ओल्ड दिल्ली, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ओल्ड दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली। जो भी शाहजहानाबाद में आप जो भी फीचर्स पढ़ोगे बच्चों, आज के डेट में भी अगर आप दिल्ली आओगे तो आपको वो ओल्ड दिल्ली के पार्ट में दिखेगा। चांदनी चौक, फैज बाजार, वो सारे एरियाज जो आप देखोगे तो वो जो जामा मस्जिद का एरिया है तो वो पूरा आपका ओल्ड दिल्ली का एरिया है, ओके। अब जो आप न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ोगे बिल्कुल डिफरेंट था ओल्ड दिल्ली से, बिल्कुल क्राउडेड नहीं था, बहुत कम क्राउड था, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाए गए थे स्ट्रीट्स को, ड्रेनेज सिस्टम को, जिसके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंटली अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। Also, now let us talk about planning a new capital. So the British were fully aware of the symbolic importance of Delhi. Obviously, क्योंकि इस टाइम पे आप देखो कितने टाइम से जब हम लोग मुगल्स की बात कर रहे हैं, शाहजहानाबाद जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये सारी चीजें कहाँ पे, दिल्ली के आसपास बना था, है ना। So British they were totally aware of the symbolic importance of Delhi, कि दिल्ली उनके लिए एक important city है। दो उस टाइम पे वो लोग दिल्ली से डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, but they were aware of this importance of Delhi, okay. So after the revolt of 1857, many spectacular events were held there. तो इसलिए to show the importance of Delhi कि उनके लिए भी बहुत ही important place है, और उन्होंने देखा that revolt of 1857 it took place around Delhi, then in Delhi and the areas adjoining that Delhi region. तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत important और बहुत ही splendid events हुए थे बच्चों after the revolt of 1857. So now let us have a look of those events that took place, okay. So again I'll tell you to remember the date, the events that took place at that time, because when we are talking about this history, all you need to remember is the events and also all the important places that we are talking about, okay. So in 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. तो बच्चों again I am taking you back to our last chapter about the revolt of 1857. तो आपको याद होगा जैसे रिवोल्ट खत्म हुआ था, जैसे 1858 में प्रोक्लेमेशन हुआ था ऑफ क्वीन विक्टोरिया, राइट। और वो प्रोक्लेमेशन में क्या था, दैट द होल रूल वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन, राइट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो मोर डायरेक्टली रूलिंग आवर कंट्री, उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था, अब पूरा कंट्रोल किसके पास था, क्वीन विक्टोरिया, दैट इज द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, राइट। तो उस टाइम पे सॉरी द क्राउन ऑफ ब्रिटेन, तो पूरा रोल किसके पास था बच्चों, या रूल हमारी कंट्री का, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इस ओकेजन को दिखाने के लिए टू मेक दिस ओकेजन वेरी मच पावरफुल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन 1877 दिस इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, अ दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, ओके, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार भी कहते हैं, ऑफ 1877, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइसरॉय लिटन। तो बच्चों आपको याद होगा कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम भी चेंज हो गया था, उनको अब किस चीज से डिनोट किया जा रहा था, तो द टर्म वाइसरॉय वाज यूज्ड फॉर द गवर्नर जनरल। तो उस टाइम पे 1877 में गवर्नर जनरल कौन था, सो इट वाज लिटन हु वाज द वाइसरॉय दैट टाइम, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड दिस दरबार टू एक्नॉलेज Queen Victoria as the Empress of India. Now Queen Victoria was now acknowledged as the Empress of India, and all the rulers, all the princes, they were present
they were present there in order to pay homage or respect to the empress, क्योंकि इनको subordinate होना था, right? ये पूरा एक नया रूल बना था उस टाइम पे आफ्टर 1857, आफ्टर द रिवॉल्ट, की जितने भी नए रूलर्स होंगे उनको किसी को दे वोंट बी रूल्ड अगेन, बट उनको सबऑर्डिनेट रहना था अंडर द क्वीन. ओके, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द फेमस दरबार ऑफ 1877. अपार्ट फ्रॉम इट, in 1911 when King George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion. तो आपको पता है कि ब्रिटेन वॉज अ मोनार्क एंड स्टिल इट्स टुडे अ मोनार्क, राइट? तो वहाँ पे रूल कौन करता है, वहाँ पे क्राउन किसके पास है बच्चों? सो हु होल्ड्स द क्राउन? सो इट इज द क्वीन और द किंग. तो उसके बाद 1911 में किंग जॉर्ज V को बच्चों क्राउन किया गया था इंग्लैंड में, और उस ओकेजन को दिखाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अगेन ए दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली. ओके, so the decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi was announced at this darbar. Again one important point to remember कि ये वही दरबार था, 1911 का दरबार था बच्चों, जहाँ पे it was decided कि कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगा. और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि कैलकाटा से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुआ था. ये आप जब हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कैलकाटा से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुआ था हमारा कैपिटल. ओके, नाउ दिस इज द होल 1911 दरबार. हियर यू कैन सी बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा प्रिंसेस और रूलर्स, लोकल रूलर्स थे बच्चों, जो इस पूरे दरबार में आए थे. एंड दिस इज द प्रोसेशन वेयर हियर इज द रॉयल किंग जॉर्ज V एंड ही इज विद द क्वीन हियर एंड ही इज मार्चिंग, और उसके बाद फाइनली ये दरबार में गए थे. ओके, ऑल्सो लेट अस टॉक अबाउट न्यू दिल्ली. So New Delhi was constructed as a 10 square mile city on Raisina Hill south of the existing city. तो existing city कहने का क्या मतलब है बच्चों? जो ओल्ड दिल्ली बना था उसके साउथ वाले रीजन में now the new city was built up, that is the New Delhi, and it was constructed on Raisina Hill. Please remember कहाँ पे construct हुआ था. Also who was the in charge, who was the architect of this New Delhi? So Edward Lutyens and Herbert Baker were the two architects who were called on to design New Delhi and its building. तो बच्चों बाहर से बुलाए गए थे दो आर्किटेक्ट्स, टू फेमस आर्किटेक्ट्स वर ब्रॉट डाउन in order to build the New Delhi as the capital of British India. Okay, तो आप देख सकते हो ब्रिटिश कितना मेहनत कर रहे थे in order to build this new city. Okay, so remember the two architects, the name of the two architects, that is Edward Lutyens and the second one is Herbert Baker. तो आप देख सकते हो this is the construction of New Delhi. जब New Delhi बन रहा था तो आप देखो ये पूरा एक लार्ज सिटी, द इंपीरियल सिटी दैट वाज बिल्ड डाउन ड्यूरिंग दैट टाइम इन द ब्रिटिश इंडिया. ओके, ऑल्सो द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स. अब हम लोग न्यू दिल्ली के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं बच्चों. आप लोगों ने शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ा, दैट वाज द ओल्ड दिल्ली. अब हम न्यू दिल्ली कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कौन कौन से मेन फीचर्स थे, मेन बिल्डिंग्स थे, उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 mile एवेन्यू, दैट इज किंग्स वे, अब प्रेजेंट डे पे वो आपका राजपथ है, एंड दैट लेड टू द वाइसरॉयज पैलेस, दैट इज नाउ राष्ट्रपति भवन, विद सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू. तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, कि उस टाइम पे दो मेन बिल्डिंग्स जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, एक तो आपका किंग्स वे था जो आज का प्रेजेंट डे राजपथ है. ओके, दैट लीड्स टू इंडिया गेट. ये देखो ये राजपथ का व्यू है बच्चों, यहाँ पे पूरा ये रायसीना हिल पे ये पूरा राजपथ बना था. ओके, इट इज अ टॉप ऑफ द रायसीना हिल्स, और यहाँ पे पूरा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे ये इसी एरिया में लोकेटेड थे. और आज का प्रेजेंट डे ये राजपथ है. ठीक है, राजपथ के पास आपका इंडिया गेट है. आई विल शो यू द पिक्चर नाउ. एंड दिस इज द राष्ट्रपति भवन, जो आज का प्रेजेंट डे राष्ट्रपति भवन है. उस टाइम पे वाइसरॉय का लॉज हुआ करता था, जहाँ पे वाइसरॉय रहा करते थे. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अब हम लोग प्रेजेंट डे पे देखते हैं जो आपका राजपथ और राष्ट्रपति भवन है. ओके, नाउ दिस इज योर इंडिया गेट. यहाँ पे जैसे मैंने आपको राजपथ के बारे में बताया, so this is the road that leads to this India Gate. Again, when you will visit Delhi, one more historical place for you to visit is India Gate. Okay, that leads to Rajpath. Okay, also the second place that हम लोगों ने अभी बात किया, the Viceroy's Lodge, वो आज के डेट में आपका प्रेसिडेंट्स हाउस है, दैट इज राष्ट्रपति भवन. कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे राष्ट्रपति है बच्चों, वो इसी भवन में रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द राष्ट्रपति भवन. नाउ यू कैन सी द सिमिलैरिटी इन द पिक्चर, राइट. ये आपका एक फोटो जो आपका वाइसरॉय लॉज का है, ऑल्सो जो आपका राजपथ है बच्चों. आज के डेट पे आप देख सकते हो ये पूरा आपका पार्लियामेंट, पूरा एरिया जो है बहुत ही सुंदर है. आप दिल्ली आओगे, प्लीज आई विल सजेस्ट कि आप ये सारे एरियाज जाके देखो, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हो. सो ऑब्वियसली यू शुड ऑब्जर्व दीज प्लेसेस सो दैट यू कैन कीप ऑल दीज प्लेसेस
in your mind. Okay. Also, the features of these government buildings were borrowed from different periods of India's imperial history, but the overall look was classical Greece. Okay. तो बच्चों ओवरऑल लुक जो इस प्लेस का था, जो भी ये बिल्डिंग्स बन रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रहे थे, इट वाज टेकन फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीस. नाउ ग्रीस इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड इन द यूरोपियन पार्ट, राइट. आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो आपको साउथ में वहां पे ग्रीस दिखेगा. सो 5th सेंचुरी बीसी में जो ग्रीस में जैसे बिल्डिंग्स, जो क्लासिकल ग्रीस का जो आर्किटेक्चर था बच्चों, तो ये आप पोल्स, ये पिलर्स जो आप देख रहे हो, ये पूरा आप जो देखोगे बहुत ही सिमिलर आर्किटेक्चर था उस टाइम ग्रीस में भी. तो जितने भी फीचर्स थे ये डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट पीरियड से लिया गया था. ओके. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the planning of a new capital. We saw that how the scenario changed after 1857. जितना भी मुगल टाइम पे जो भी चीजें बनी थी, जो गार्डन्स थे, जो मॉस्क थे, सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था. एंड फाइनली अ न्यू कैपिटल वाज बिल्ड. बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स हुए थे दिल्ली में. जो 1877 का दिल्ली दरबार था, फिर 1911 का दिल्ली दरबार था, एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू दिल्ली. ओके. अब बच्चों हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट न्यू दिल्ली, जो स्ट्रीट्स थे या व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.